Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the next chapter, that is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. First of all, I'll give you some information about the author of this story. Herbert George Wells was born on September 21, 1866. He was a prolific English writer in many genres. He wrote dozens of novels, short stories, and works of social commentary, satire, biography, and autobiography. He is best remembered for his science fiction novels and is often called a father of science fiction. His remarkable works are The Outline of History, The Red Room, The Time Machine, The Invisible Man, The War of the Worlds, and The First Man in the Moon. He died on August 13, 1946 in England. हर्बर्ट जॉर्ज वेल का बर्थ सितंबर 21, 1866 को हुआ। वो एक प्रोलिफिक इंग्लिश राइटर थे, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लिखने वाले राइटर थे और उन्होंने हर किस्म की जो है राइटिंग वर्क्स लिखे। उन्होंने दर्जनों नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, सोशल कमेंट्री राइटिंग वर्क्स लिखे, सैटायर, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सब उन्होंने लिखे। और जो उन्हें जो याद किया जाता है सबसे ज़्यादा उनके साइंस फिक्शन नॉवेल्स के लिए, और अक्सर उन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहकर भी पुकारा जाता था। असाधारण राइटिंग वर्क्स थे वो थे द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, द रेड रूम, द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स एंड द फर्स्ट मैन इन द मून। और उनकी डेथ अगस्त 13, 1946 को इंग्लैंड में हुई। Now I'll tell you the theme of this story. Footprints Without Feet is an extract of H.G. Wells' famous science fiction The Invisible Man. This is the story of an eccentric scientist named Mr. Griffin. He discovered the formula of invisibility and then tried it on himself. He became invisible, he misused his invisibility, he set on fire his landlord's house because he wanted to take revenge. Then he stole money in Iping. Then he deceived his landlady, Mrs. Hall, in Iping. He went mad with the power of being invisible. He became isolated. His formula of invisibility brought him in conflict with community in Iping. Footprints Without Feet, written by H.G. Wells, जो है वो उनकी एक फेमस जो साइंस फिक्शन था द इनविजिबल मैन, उसी का एक पार्ट है। ये एक सन की साइंटिस्ट मिस्टर ग्रिफिन की कहानी है। उसने इनविजिबल होने का जो फॉर्मूला था वो तलाश कर लिया था, ढूंढ लिया था, यानी कि गायब होने का जो फॉर्मूला था उसको उसने ढूंढ लिया था और उसने इसे अपने ऊपर ही जो है ट्राई किया। वो गायब हो गया। उसने जो है अपने इनविजिबिलिटी का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी क्योंकि वह उनसे बदला लेना चाहता था। फिर उसने आइपिंग में पैसे चुराए। उसके बाद उसने आइपिंग में अपनी मकान मालकिन मिसेस हॉल को धोखा दिया। गायब होने की जो उसकी ताकत थी उसके कारण वो पागल सा हो गया था, वो बिल्कुल अकेला हो गया। उसके गायब होने का जो फॉर्मूला था, जो इनविजिबिलिटी का उसका फॉर्मूला था, उसने उसे आइपिंग के समाज में एक द्वंद्व में लाकर खड़ा कर दिया, एक कन्फ्लिक्ट में लाकर खड़ा कर दिया। Now I'll explain you the story in detail. The story starts when two boys got surprised to see fresh muddy imprints of a pair of bare feet. That was a remarkable sight for them as they did not know where these marks appeared from. यह कहानी तब शुरू होती है जब दो लड़के नंगे पांव के ताज़े कीचड़ से भरे पैरों के निशान देखकर हैरान हो गए। ये उनके लिए एक असाधारण दृश्य था क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये निशान कहाँ से आते जा रहे थे। Actually, it was Griffin, the scientist, who discovered after experiment how to make human body transparent. He swallowed the rare drugs and his body became transparent as sheet of glass. He became invisible without clothes. Griffin was a brilliant scientist but a lawless person. He was not liked by his landlord. The landlord tried to eject him. Griffin wanted to take revenge and set fire on his house and ran away from there. He had to put off his all clothes in order to look invisible. He was invisible but without clothes and money. He stepped in mud and left footprints.
वास्तव में ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट के बाद यह खोज निकाला था कि ह्यूमन बॉडी को यानी मानव शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जाए। उसने एक रेयर यानी कि दुर्लभ दवाई को निगल लिया और उसका शरीर जो था वो शीशे की चादर की तरह, शीशे की शीट की तरह जो है पारदर्शी हो गया, ट्रांसपेरेंट बन गया। वह बिना कपड़ों के अदृश्य हो जाता था। ग्रिफिन एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो कानून को नहीं मानता था। वो एक लॉलेस पर्सन था। उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था। मकान मालिक ने उससे निकालने का कोशिश किया, उसको निकालने का प्रयत्न किया। ग्रिफिन उससे बदला लेना चाहता था और उसने उसके घर में आग लगा दी और वहाँ से भाग गया। उसे इनविजिबल दिखने के लिए सारे कपड़े उतारने पड़े और वो जो है अदृश्य था, इनविजिबल था, लेकिन कपड़ों के बिना और पैसों के बिना। उसके पाँव कीचड़ में पड़े और पैरों के निशान छोड़ता गया। Griffin easily escaped from the boys who followed his footprints. It was bitter cold and he was without clothes. He could not tolerate the bitter cold. He entered in a store to pass the night in London. He got clothes there, he found meat and coffee also. After that, he ate sweets and drank wine. Finally, he slept on a pile of quilts. ग्रिफिन उन लड़कों से आसानी से बच निकला जिन्होंने उसके पैरों के निशानों का पीछा किया था। बहुत ज़्यादा ठंड थी और वह बिना कपड़ों के था। वह तेज़ ठंड को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने लंदन के एक स्टोर में रात गुजारने के लिए प्रवेश किया गई। उसके बाद उसने मिठाई खाई और शराब पी और आखिर में रज़ाइयों के ढेर पर सो गया। Griffin kept sleeping until assistant employers arrived in the morning. In order to save himself, he had to be naked again in the bitter cold. Then he went to Drury Lane in a theatre company to look for something. Soon he found a suitable shop. After a little later, he came out wearing bandages round his forehead, dark glasses, a false nose, bushy whiskers, and a large hat. He stole money after attacking the shopkeeper and ran away. ग्रिफिन वहां तब तक सोता रहा जब तक कि असिस्टेंट एम्प्लॉयर्स वहां नहीं पहुंच गए। अपने आप को बचाने के लिए उसे दोबारा कड़ी सर्दी में जो है कपड़े उतारने पड़े। फिर वो ड्रूअरी लाइन में एक जो थिएटर कंपनी थी वहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए चला गया। जल्दी ही उसे एक जो है सही दुकान मिल गई, उचित दुकान मिल गई। थोड़ी देर के बाद वह अपने माथे पर पट्टियाँ लपेटे, काले चश्मे पहने, एक नकली नाक लगाए, बड़ी बड़ी मूछें लगाए और एक बड़ी सी हैट पहनकर बाहर निकला। उसने दुकानदार पर वार करके पैसे चुरा लिए और भाग निकला। Then Griffin went to Village Iping. He went to Mrs. Hall, the landlord's wife. He booked 2 rooms there. His arrival in winter was an unusual event, but Mrs. Hall made every effort to be friendly with him. He looked strange with bandages on his forehead. He had uncommon appearance, but Griffin did not want to talk to her and told her that he had come there for solitude, so not to disturb him. फिर ग्रिफिन आइपिंग विलेज में गया। वहाँ पर जाकर वो एक सराय के मालिक की जो वाइफ थी मिसेस हॉल, उसके पास गया। उसने वहाँ जाकर 2 कमरे बुक किए। इतनी सर्दी में उसका आना एक अनयूजुअल जो इवेंट था, एक असाधारण घटना थी, लेकिन मिसेस हॉल ने उससे दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश की। अपने माथे पर पट्टियाँ बांधे वो बहुत अजीब दिखता था। यह एक असामान्य दिखता था, लेकिन ग्रिफिन उससे बातें करना नहीं चाहता था और उसने उसे बताया कि वो वहाँ अकेला रहने के मकसद से आया है और इसलिए उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। Though Griffin was an eccentric scientist, but she was satisfied as he had paid in advance. She ignored his irritable behavior. After some time, the village people started talking about him. Griffin's stolen money did not last long. He admitted that he had no cash but expecting to get a check. यद्यपि ग्रिफिन एक सनकी साइंटिस्ट था,
परंतु वह संतुष्ट थी क्योंकि वह एडवांस में जो है पेमेंट कर चुका था। उसने उसके चिड़चिड़े स्वभाव पर भी ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद गांव के जो लोग थे उन्होंने उसके बारे में बातें करनी शुरू कर दी। ग्रिफिन का चोरी किया हुआ पैसा ज़्यादा समय तक नहीं चला। उसने एक्सेप्ट किया कि उसके पास नकद नहीं था, लेकिन जल्दी ही उसे एक चेक मिलने की उम्मीद थी। After some time, he stole money from clergyman's desk. Mr. and Mrs. Hall woke up and surprised to see his room open. They entered the room and found chair alive, and then the chair pushed them out of the room and locked the room inside. After some time, he came out from the room dressed. Mrs. Hall was surprised and asked how he entered in locked room. He became furious and threw off his bandages, spectacles, and nose. He became headless man. The villagers got frightened to see a headless man. कुछ समय बाद उसने जो है क्लर्जीमैन यानी जो पादरी था उसकी डेस्क से पैसे चुराए। मिस्टर एंड मिसेस हॉल सुबह उठे और जब उन्होंने उसका कमरा खुला देखा तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कमरे में एंटर किया और कुर्सी जो थी उसको सजीव देखा, अलाइव देखा। उस कुर्सी ने उन्हें बाहर धकेल दिया और जो रूम था वो अंदर से लॉक हो गया। कुछ देर के बाद वह कपड़े पहनकर बाहर निकला। मिसेस हॉल हैरान हुई और उन्होंने उससे पूछा कि वो लॉक्ड रूम में अंदर कैसे एंटर हुआ। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी पट्टियाँ, चश्मे और नाक उतार कर फेंक दिए। वह बिना सिर वाला आदमी बन गया। गांव वाले बिना सिर वाला आदमी देखकर हैरान हो गए और काफ़ी डर गए। A constable, Mr. Jeffers, was called. He was also shocked to see a headless man, but it was his duty to arrest the man whether he had head or not. A fight took place there. Griffin started to remove his clothes one by one. Finally, he became naked and invisible. He attacked on Jeffers and made him unconscious. Thus, he got free and hurried from there. एक जो कांस्टेबल था जेफर्स, उसे बुलाया गया। वो भी एक हेडलेस यानी कि बगैर सिर वाला आदमी देखकर हैरान था, लेकिन उसे अरेस्ट करना उसकी ड्यूटी थी, चाहे उसका सर हो या ना हो। वहाँ पर जो है लड़ाई हुई। ग्रिफिन ने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और आखिर में वो बगैर कपड़ों के गायब हो गया। उसने जेफर्स पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। इस तरह से वो आज़ाद हो गया और वहाँ से भाग निकला।